I would now request Shri Rajat Sharma sir to please come for the lamp lighting ceremony. Along with him, I also invite Mr. Avneendra Yadav, the President of Caucus, Ms. Mudita Mishra, the Vice President of Caucus, and Professor Om Gam Ganpataye Namaha. We would now seek the blessings of Lord Ganesha through a performance of Ganesh Vandana. Karoti kalyanam arogyam dhana sampada shatru buddhi vinashaya deepam jyotirnamostute.
silence. The enchanting melody and the divine aura left us all spellbound. Thank you, Chahat. Now, I would like to invite Mr. Avneendra Yadav, the President of Caucus, to address the audience. परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रजत शर्मा जी, हिंदू कॉलेज पार्लियामेंट की स्पीकर डॉक्टर मनीषा पांडे मैम, मेरे सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे इस प्रयास में। सर का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि सर का बहुत बिजी शेड्यूल था, उसके बावजूद सर ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और आज हमारे साथ हैं। साथ ही साथ में हमारे जितने छात्र छात्राएं हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे इस इवेंट का आज पार्ट बन रहे हैं। कंपस की शुरुआत महामारी के दौर में हुई थी। वो एक ऐसा दौर था जब देश दुनिया पे अंधकार छाया हुआ था। लिखने पढ़ने सीखने के सभी माध्यमों पे कई कठिनाइयाँ आ रही थी। ऐसे में हमारी मार्गदर्शक प्रधानाचार्य प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव मैम की प्रेरणा से हमने कंपस की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य ये था कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स को एक साथ लाएं और छात्रों के साथ जो संवाद है उसको रीस्टार्ट करें। आज कंपस 2023 के इनॉग्रल सेरेमनी में मैं इस मौके पे धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का, जिन्होंने हमें सभी संसाधन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की और उनके बिना ये संभव नहीं था। साथ ही साथ दो बहुत ही मजबूत स्तंभ थे जिनकी वजह से आज ये संभव हो पा रहा है, हमारा जो प्रयास है वो सार्थक हो पा रहा है। प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव मैम जो कि हमारी प्रिंसिपल हैं और हमारी टीआईसी प्रोफेसर शालिनी सूर्यनारायण मैम, जिनका हमें हर मौके पे साथ मिला और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम संकल्पबद्ध तरीके से बौद्धिक उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी का फिर से कंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद देता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। Our first session for Kautilya School of Public Policy presents Compass 2023 is going to be a session on the topic Lessons from the Legends by a legend himself, the quintessential journalist Shri Rajat Sharma sir. So let's put our hands together to welcome our esteemed guest for this inaugural session of Kautilya School of Public Policy presents Compass 2023, Shri Rajat Sharma sir. Thank you, Vasudev. For the very first session of Compass 2023, we have with us someone whose name hardly requires an introduction. But leaving his achievements undefined would be an injustice. So here I am to humbly tell you about our guest, Shri Rajat Sharma sir. Mr. Rajat Sharma is the chairman and editor-in-chief of India TV, India's most watched news channel. Mr. Sharma, who has been bestowed with one of India's highest civilian honors, the Padma Bhushan Award, is best known for his popular show, Aapki Adalat. Aapki Adalat is the longest-running television show in India's television history. The show has continued to captivate the viewers for a record 29 years. Mr. Sharma holds a master's degree from the prestigious Shri Ram College of Commerce, Delhi. Back then, Mr. Sharma was actively involved in student politics at the University of Delhi. Mr. Sharma is the Vice President, Strategic Affairs of the Indian Broadcasting Foundation. Mr. Sharma has led the way with the motto, credibility first. It is the result of the efforts of a self-made man who kept both his feet firmly to the ground, a journalist for whom the viewer's interest has been paramount. His shows have many times forced governments to change their ways of dealing with social reforms, environmental issues, and public welfare. Considered as the most powerful journalist of India, Mr. Rajat Sharma also enjoys stardom with a huge fan following. We would now have a small video presentation of the esteemed chief guest. The most watched show on news television in India. Aapki Adalat, People's Court of India, 30 years, non-stop. And the man who prosecutes with a smile.
मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूँ। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं और उन्होंने इसे किया। This program has manifested the strength of our democracy. And please do not change your role. You be the public prosecutor of the people of India. Thank you, ladies and gentlemen. Rajat Sharma has grilled more than 1,000 powerful personalities, political leaders, film stars, celebrities. Yeah, this is the power of education. This is the power of so very proud of this guy. मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाबले में मैं आपको बहुत धन्यवाद थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया। He made them laugh, cry, share secrets. Narendra Modi, Pranab Mukherjee, Arun Jaitley, Manmohan Singh, Atal Bihari Vajpayee, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Virat Kohli, Imran Khan, Kapil Dev, Vijay Mallya, Rahul Bajaj. Icons, stars, and controversial people. List of his guests is never ending. Millions watch him on India TV and YouTube world over. आपकी अदालत मेरे सवालों से नहीं बना, आपकी अदालत आपके जवाबों से बना। Rajat Sharma, India most watched TV star. We thank Sir for obliging us with his presence today and would request him to shed light on his inspiring journey as not only one of India's most successful journalists, but also as an inspiring public figure. So let us get ready for some great lessons from this legend. I would now like to request the moderators for the session, Ishika Srivastava and Arpit Rituraj, to escort Sir to the stage so that we can begin with the session and navigate to an informed tomorrow. A very good morning, sir. As Vasudev and Amaya just introduced you, and it's a matter of absolute pride for us to have you with us today. Thank you so much for obliging us with your time. As we know that you have a very tight schedule, so starting right away, sir. In these 30 plus years of your experience with you behind the mic asking Tikhe Sawal, it's again a privilege for us to get you on the other side and have this opportunity. On a personal note, sir, how did you swivel towards journalism? Which events shaped up this path for you? सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस यूनिवर्सिटी कैंपस से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में गुजरे और हिंदू कॉलेज से एक बहुत पुराना नाता रहा है। जब मैं स्टूडेंट था SRCC में तो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रेज में पार्टिसिपेट करने के लिए
अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, जिसमें हिंदू कॉलेज भी था। उस समय ये ऑडिटोरियम इतना खूबसूरत नहीं था। उस समय ये जो साउंड सिस्टम आपका इतना क्लासिकल है, इतना अच्छा नहीं था। तो बहुत बहुत बधाई आपको ये ऑडिटोरियम के लिए, इस साउंड सिस्टम के लिए। और उस ज़माने के जो फेस्टिवल्स होते थे वो भी इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे। तो आप इस इतनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं। हमने जहाँ से शुरू किया था अपने ज़माने में, तो इसलिए जो इसको ऑर्गेनाइज करने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है जर्नलिज्म का, मेरी कैसे ये ज़िंदगी, कैसे यात्रा शुरू हुई। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर घटनाएं हुई, जो सफलता मिली वो कोइंसिडेंसेस थे। मैं एक बहुत साधारण गरीब परिवार से आता था। तो कॉलेज में जब थे तो सपना कोई जर्नलिस्ट बनने का, कोई टीवी का ऐसा नहीं था। सपना ये था कि बीकॉम ऑनर्स पास कर लें तो थोड़ी सी नंबर अच्छे आ जाए तो एक अच्छे बैंक में नौकरी मिल जाए। और बैंक में उन दिनों ओवर टाइम मिला करता था। सोचते थे कि उतनी कमाई कर लेंगे कि अपने घर वालों की थोड़ा पेट पाल सकें। लेकिन किस्मत ने पलटी खाई। यूनिवर्सिटी कैंपस में जब मैं आया तो बहुत सारे लोग मुझे मिले और पहली मेरी जो दोस्ती हुई, पहला जो मेरा मुलाकात हुई, वो एक ऐसी शख्सियत से हुई जो देश के बहुत बड़े लीडर बने बाद में। मैं कॉलेज में फीस देने की लाइन में खड़ा था और 2-2, 4-4 रुपए के जो इकट्ठे पैसे थे वो दे रहा था SRCC के काउंटर पे। तो अकाउंटेंट साहब मुझे ऊपर चिल्लाने लगे कि भाई ये क्या है, कहाँ से। उन्होंने चल यूज़ किया, ये भिखारी आ जाते हैं। और जब पैसे जमा कराने लगा तो उसमें से 5 रुपए कम थे, तो उन्होंने बहुत जोर से डांटा और कहा कि अब फिर आना। तो मुझे पता था कि अब आज फीस नहीं जमा करा पाया तो फिर SRCC में एडमिशन नहीं होगा। तो पीछे से एक शख्स को मैंने देखा, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, यहाँ तक कि कलमे, वेरी हैंडसम मैन, ब्लैक बेल्ट। और उन्होंने आके इनको डांटा, अकाउंटेंट को, कोई फ्रेशर से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो जेब से 5 रुपए निकाले, उनको दिए। तो वो शख्स अरुण जेटली थे। कॉलेज के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे और वो राउंड ले रहे थे कॉलेज का। और फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे वहाँ से कहा कि तुम्हारे पास तो चाय के पैसे भी नहीं होंगे। और अकाउंटेंट के ऑफिस से वो मुझे कैफेटेरिया तक ले गए और रास्ते में उन्होंने मुझे पूरा स्कैन कर लिया। कौन से स्कूल से आते हो? अच्छा रामजस से। अच्छा हिंदी मीडियम। अच्छा तुम्हारे स्कूल से कितने स्टूडेंट्स आए हैं? और भी किसको जानते हो? तो मैंने कहा मैं बाकी स्कूल में डिबेट के लिए जाता हूँ, उनको जानता हूँ। तो उन्होंने इतनी देर पता लगा लिया था कि इसके पास में 30-32 वोट है। तो उनको लगा ये काम का आदमी है और ये डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है तो भाषण देने की भी काम आएगा। तो इस तरह से मेरी उनकी टीम में एंट्री हुई और फिर जिंदगी बदलती चली गई। जर्नलिज्म में भी मेरी एंट्री बाई चांस हुई। मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर सोचा था यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनेंगे। लेकिन जब तक लेक्चरर बनते तो वो जो बीच में 3 महीने का टाइम था छुट्टियों का, उस समय एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उस जमाने में जनार्दन ठाकुर, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे रिसर्चर का काम दिया और वो छोटे छोटे असाइनमेंट मुझे देते थे। और वो तो लंबी कहानी है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बहुत बड़ा बना दिया, किस्मत ने साथ दिया, इंफॉर्मेशन मिलती गई और फिर जर्नलिज्म का ही सिलसिला शुरू। तो पहला जो जॉब था मेरा वो ऑनलोकल मैगजीन में था और 1983 में 750 रुपये महीने की तनख्वाह पर मुझे नौकरी मिली थी। आज भी वो टेलीग्राम मेरे पास में जिसमें वो आया था। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3-4 दिन से बुखार था, गला खराब है, डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन मैंने कमिट किया था, मैं इसलिए आया हूँ। तो आप मत सोचिए क्या मैं डिफेक्टिव पीस है, आवाज़ ऐसी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ हमारे बीच आए। सर
मेरी परवरिश हुई है आपकी अदालत देखते थे। आपने दुनिया भर के तमाम मशहूर हस्तियों से सवाल पूछे हैं। आज मैं यहाँ पर बैठकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये शर्त मेरे लिए गौरव भरा है। As we start talking about your journey, आपकी अदालत has been the largest fan base all across the TV shows that we have out there. How did this glorious journey of the Adalat, which indeed is India's very own, came to begin? आपकी अदालत की शुरुआत बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। मैं मुंबई में द डेली नाम के अखबार का एडिटर था और आई यूज्ड टू वेरी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। एक दिन हम फ्लाइट में जा रहे थे तो फिल्म स्टार गुलशन ग्रोवर, वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, SRCC में मेरे साथी थे, वो मेरे साथ सीट पर बैठे थे और उस समय सुभाष चंद्रा जी ने ZTV शुरू किया था, 3-4 महीने हुए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, भाई तो इसको जानता है? ऐसे वो एक फ्रेंच कट रखते हैं, इस दाढ़ी को जानता है? तो मेरे अंदर वो एडिटर वाली एरोगेंस थी। मैंने कहा हाँ बताओ, बच्चा है, तो बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि इसके चैनल पर अगर मेरा इंटरव्यू आए तो मुझे लाओ। तो मैं सुभाष चंद्रा जी के पास गया, आइन में खड़े थे, उनके साथ में रमेश चौहान जो पार्ले के ओनर हैं वो थे और इस पर बातचीत शुरू हुई। तो मैंने सुभाष जी से कहा, भैया हमारा दोस्त है, इसका इंटरव्यू करो। तो उन्होंने कहा, देखिए साहब, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मैं तो कोई इंटरव्यू कर नहीं सकता, आप क्यों नहीं इसका इंटरव्यू करते? तो ये मुझे थोड़ा इंसल्टिंग लगा कि मैं इतना बड़ा एडिटर और मुझे ये कह रहे हैं कि गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू करो। तो मैंने उनको लेक्चर देना शुरू किया। मैंने कहा, देखिए साहब, 2 लोग बैठ के बात करें, इससे क्या होगा? आप पब्लिक को बुलाइए, नेताओं को कटघरे बिठाइए, उनको जूते मारिए, उनको अकाउंटेबल बनाइए। और मैं काफ़ी 10-12 मिनट तक बोलता गया। वो बात खत्म हो गई, फ्लाइट लैंड कर गई, हम लोग बैठ गए। 3-4 दिन बाद सुभाष जी का मुझे फ़ोन आया कि भाई पंडित जी, वो सब पंडित जी कहते थे अरुण जी की वजह से लोग मुझे, तो पंडित जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने पूछा बताइए। तो वो आए मेरे ऑफिस में, कहा वो जो आपने शो डिस्कस किया था। मैंने पूछा कौन सा शो? वो जो आपने फ्लाइट में कहा था कि वो कोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, सुभाष जी मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो ऐसे हवाबाजी कर रहा था। उन्होंने कहा, नहीं ये शो अच्छा हो सकता है। मैंने कहा, छोड़िए साहब, मुझे शो नहीं करना, तो प्रिंट का आदमी, लिखने पढ़ने वाला आदमी। लेकिन ही केप्ट इंसिस्टिंग, 2nd टाइम 3rd टाइम, और मैं बार उनसे कहता, देखिए। फिर फाइनली मैं उनके ऑफिस गया। मैंने कहा, मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ये हवाबाजी की थी, मैंने कभी सोचा नहीं शो के बारे में। लेकिन उनके इंसिस्टेंस पर फिर 2 उनके क्रिएटिव डायरेक्टर्स आए, तो फाइनली मैंने एग्री किया। फिर थोड़ी सी तैयारी की और 12 फरवरी 1993 को पहला आपकी अदालत रिकॉर्ड हुआ विद लालू प्रसाद यादव। सर, ये आपकी अदालत की इस शुरुआत के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इंसाइटफुल है। हमने वेरियस सोर्सेज से जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, सो वी केम अक्रॉस कि आर प्राइम मिनिस्टर्स अटल जी, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज सेड दैट द अदालत has played an impeccable role in the making of an image of the Prime Minister. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की छवि बनाने में की शुरुआत जो है वो आपकी अदालत से ही हुई है। So sir, on these lines, if you could share some anecdotes with our Prime Ministers कि आपके interaction से both on the lens and behind the lens, which lessons do you want us to know? देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने, कुछ आपकी अदालत में आने के पहले, कुछ आपकी अदालत में आने के बाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, 2 लोगों का मैं जिक्र आपने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े लेजेंड थे, और वो जब भाषण देते थे तो मेस्मराइज करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा का जो कंडक्टर है वो पब्लिक को हंसा रहा है, रुला रहा है। इतनी उनकी आवाज़ में, उनकी वाणी में ताकत थी। उनको आपकी अदालत में इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल काम था। वो प्रोग्राम उनका हुआ और वो बहुत सुपर हिट हुआ। मेरी वजह से नहीं,
उन्होंने इतने अच्छे जवाब दिए उसकी वजह से। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने और 13 दिन उनकी सरकार चली, फिर उनकी सरकार गिर गई। मेरी तरफ से उनको संपर्क करने का कोई कारण नहीं था, मुझे लगा मेरा तो शो हो गया था, फिर वापस नंबर आता 2-4-5 साल बाद। देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए डिनर रखा था, वहां मैं एज ए जर्नलिस्ट गेस्ट था। तो वहां अटल जी ने मुझे देखा और मुझे कहा आइए आपको हाजिर होना है। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं, आप हमारे सामने हाजिर होइए। तो मुझे लगा मैंने उनसे बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे, जब नाराजगी होगी तो बुला के मुझे डांटेंगे। मैंने जैसे उनको पूछा था अटल जी आपके चेहरे की लाली का राज क्या है, तो कई तरह के मजाक के भी सवाल थे, बट ही वॉज रियली मार्वेलस इन आंसरिंग एवरीथिंग। फिर मैं टाइम लेकर जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा बैठिए। उनके कम शब्द होते थे और पॉज होता था उनकी हर बार उनकी बात में। तो मैंने कहा कि हमें आपसे, तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा अटल जी आप बड़े हैं, अगर कोई हमसे गलती हुई आप डांट सकते हैं, कोई बात नहीं साहब, हमारे दिल पे बोझ है, हम हल्का करना चाहते हैं। उनका एक एक शब्द आज भी मेरे कान में गूंजता है। और आज आप, उन्होंने मुझे कहा, और आज आप भूलेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे। फिर कहा कि हमें आपसे 3 बातें कहनी है। पहली बात ये, हम आपके आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बात थी, आई वाज स्टन्ड फॉर अ मिनट। मुझे लगा क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है, आपने इतना नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, आपसे मिले नहीं। तो मैंने कहा अटल जी 13 दिन में कितने लोग मिलता ही नहीं साहब, हमें आपसे मिलना चाहिए था। और तीसरी बात उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। उनकी बात सुनने के बाद में मैं 3-4 दिन तक सो नहीं पाया। इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, और चूंकि वो उनके और मेरे बीच की बात थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी मैं किसी से कहूं। कौन बिलीव करेगा? उनको ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा मन में उनके लिए रेस्पेक्ट वैसे भी उतनी रहती, लेकिन ये उनकी महानता थी। ये जो लेजेंड्स होते हैं, जो वाकई में जिनको भगवान अलग तरीके से बनाता है, ताकत देता है, शक्ति देता है, उनकी जो महानता है वो अलग ही होती है। और ये अटल जी की महानता इस घटना से रिफ्लेक्ट हुई। दूसरा आपने जिक्र किया मोदी जी का। अटल जी को तो उतने लोग नहीं जानते, मोदी जो अब आज की जनरेशन के सारे लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। 2014 में जब चुनाव के लिए उनका नाम डिक्लेयर हुआ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो मैं जानता था कि देश के लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी, ये आदमी कौन है, क्या किया है। वो पहले एज ए चीफ मिनिस्टर आपकी अदालत में आ चुके थे एक बार। तो वो उनके मैं कोशिश करता था, टाइम नहीं मिलता था, जवाब नहीं आता। फिर मैं एक दिन उनसे टाइम लेके अहमदाबाद गया। तो मैंने कहा मोदी जी अब तो चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया, तो अब तो शो करना चाहिए। तो क्या लगे पंडित जी शो तो करना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा मतलब आप पढ़ेगा वाले आदमी तो नहीं, आपको कौन फोर्स कर सकता है, आप तो अपने मन मर्जी के हैं। ये मैंने आपको उनसे पहली बार सुन रहा हूं, पढ़ेगा क्यों? तो कहा कि एक बार मैं और एक जर्नलिस्ट से टीवी शनॉय जिनका नाम लिया, मैं और शनॉय अटल जी के पास बैठे थे और बात हो रही थी प्रधानमंत्री बनने की। तो उन्होंने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत से शुरू हुई। कहते वो बात मुझे याद है, तो आपकी अदालत में आना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनना है। तो
जिस दिन वो आए रिकॉर्डिंग के लिए तो उनका गला खराब था, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह से शाम तक 5-5, 6-6 पब्लिक मीटिंग एड्रेस करता हूँ, शाम आते आते गला बंद हो जाता है। इस चीज को मैंने फैक्टर नहीं किया था। तो रात को 9:30 बजे का उन्होंने टाइम लिया था। ऑडियंस आकर बैठी थी स्टूडियो में, मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन 9:30, पौने 10, 10, 10:15 बजे उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी इसका तो कोई रास्ता है नहीं। तो मैंने कहा आप रात में रुक जाइए, सुबह सुबह कर लेंगे, मैं लोगों को सुबह 6-7 बजे भी ऑडियंस आपके लिए आ जाएगी। तो कहा कि मेरे पास पार्किंग फैसिलिटी सिर्फ अहमदाबाद में है, मैं रुक नहीं सकता हूँ रात में, और कल सुबह मुझे पटना जाना है, मेरी पब्लिक मीटिंग लगी हुई है। तो बड़े उदास मन से फिर ये तय हुआ कि ठीक है, नीचे जहां ऑडियंसेस बैठी हुई हैं वहां एक बार जाके मोदी जी अपना चेहरा दिखा दें, हम माइक लगा देंगे, वो कटघरे बैठे और हम लोग को बता देंगे कि इनकी आवाज ठीक से नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहे, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, हम वही चलाएंगे फिर अगर नई रिकॉर्डिंग होती तो, क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया है, पब्लिक सामने बैठी है। तो जैसे चमत्कार होते हैं, वो जब स्टूडियो में मेरे साथ उन्होंने एंटर किया तो पूरा स्टूडियो जिसमें 400-500 लोगों की ऑडियंस थी, वो चिल्लाने लगे मोदी मोदी मोदी, इतनी जोर से नारे लगे। तो मैंने अपने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को बुलाया, मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि बीजेपी वालों को नहीं बुलाना इसकी ऑडियंस में। तो उसने कहा सर ये बीजेपी वाले नहीं है, ये हमारे जितने ऑफिस में काम करते हैं, किसी के रिलेटिव है, किसी के दोस्त हैं। वो देखिए मेरा चाचा कनाडा से आया, वो सीट पे चढ़ के नाच रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। तो ये भी कोई बीजेपी वाले नहीं है। वहां से ये मोदी मोदी का जो नारा है, इसकी शुरुआत हुई थी। और मोदी जी भी खुद थोड़े सरप्राइज थे कि इतना रिस्पॉन्स। फिर किसी एक लड़की ने कोने से खड़े होकर कहा मोदी आई लव यू, तो ही स्माइल्ड, ही लाफ्ड। फिर एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, उन्होंने बुलाया, कहा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। और फिर लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो वो बैठे कटघरे में आके, तो मैंने कहा मोदी जी आजकल देखिए मोबाइल पर फोन आते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा देखिए इतना लोगों का समर्थन मुझे तो अपेक्षा नहीं थी। मैंने कहा कि आजकल तो मोबाइल पे मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। तो बड़े जोर से हंसे। तो मैंने कहा अभी एक मैसेज आया कि सोनिया बोली अब तो बोलो है सरदार, मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो बड़ी जोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने उसका जो जवाब दिया, उनका गला खुल गया था। उन्होंने कहा भाई ये मैसेज मैं तो नहीं भेजता हूँ पब्लिक का, भाई आप भेजते हैं, इनको बताइए आप भेजते हैं, मैं थोड़ी क्रिएट करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा साहब इस देश के लोग की जो क्रिएटिविटी है उसको मैं नमन करता हूँ। और वहां से वो प्रोग्राम शुरू हुआ, 1.5 आवर्स नॉन स्टॉप वी आस्क्ड हिम। उनके गले का कोई असर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने बहुत अच्छे और खराब सवालों के सबके जवाब दिए। और जब वो खत्म हुआ तो मैंने उनसे कहा कि कैसे आवाज आ गई। तो उन्होंने कहा देखिए ये आपकी अदालत पर किसी दैवी की कृपा है। तो यहाँ आया, यहाँ बैठा, आवाज निकली, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है आप पर किसी देवी की कृपा है जो ये आप इतने अच्छे जवाब दे पाए। ऐसे बात हुई। तो इस तरह से वो लेजेंड का प्रोग्राम हुआ और वो वाकई में वो दैट हैज बीन द बिगेस्ट हिट एवर। Thank you, sir, for those highly interesting insights. We cannot imagine how else we have got to know about them. Moving on, sir, आप और आपकी अदालत ने फिल्म जगत की हस्तियों के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलू दर्शकों के सामने लाए हैं जो कि किसी और माध्यम से शायद नहीं आ पाते। There have been some startling revelations that have been made. Sir, among all the people that we have interviewed, from Rajesh Khanna to Salman Khan, from the people of film industry, which episode is the most indelible, which is the most memorable for you? देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में वैसे तो शाहरुख, आमिर, सलमान, जो भी हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र, इतने बड़े बड़े लोग आए।
लेकिन एक आदमी ऐसा था जिससे मेरी लड़ाई थी, वो थे सलमान खान। हमने इंडिया टीवी शुरू किया था और हम किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई स्टोरी करते थे तो सलमान खान उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते थे। एक मुझे किसी ने टेप भेजा गोविंदा का, ही वॉज डांसिंग इन दुबई इन द पार्टी थ्रोन बाय दाऊद इब्राहिम। वो हमने टेप चलाया, उसकी काफी चर्चा हुई, तो सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी गालियां भी दी, ये क्या है, क्या समझते अपने आप को। तो मैं भी ये सोचता था ये क्या समझते अपने आप को, ठीक है। तो मैंने कभी सोचा अच्छा उनको लेकर के कंट्रोवर्सीज बहुत थी, ब्लैक बक का केस था, फिर वो रोड एक्सीडेंट पे उन्होंने, और जब भी ऐसा कुछ होता था हम भी खूब उनके खिलाफ स्टोरीज करते थे, अच्छी तरह से ठोकते थे। लेकिन और दूसरा मैं जानता था कि उनसे वो किसी इंटरव्यू में किसी को सीधा जवाब नहीं देते। जब भी मैं उनके किसी कोई टीवी वाला इंटरव्यू कर रहा है, वो पूछ रहा है, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, हाँ ठीक है, क्या है, जवाब दिया नहीं दिया। तो मुझे लगता था ये इनके साथ कैसे आपकी अदालत हो सकता है, तो हॉस्टिलिटी है दूसरा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को दबंग 1 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो शत्रु जी ने मुझे कहा कि भाई मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सलमान को आपकी अदालत में बुलाओ और सोनाक्षी को भी उस पर इंट्रोड्यूस करें, तो इन दोनों के लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहा शत्रु जी वो आएगा ही नहीं, मैं उसको लेके आऊंगा। तो फाइनली डे तय हुआ, शत्रु जी आ गए, सोनाक्षी आ गई, सब लोग आ गए, और आधा घंटे के बाद में मेरे ऑफिस में जहाँ हम लोग शो से पहले बैठते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो सलमान की एंट्री हुई। अब सोचिए उनका अंदाज ये था ऐसा। मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा कुछ बात करनी है। बात क्या करनी है? तो मुझे लगा कि इनसे कैसे हम शो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज है जो आप कुछ भी पूछो सर, कुछ भी। और ही वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इवन लुकिंग एट मी। मेरी वाइफ इस आपकी अदालत की डायरेक्टर है, मेरी गाइड, मेरी फिलोसफर, मेरी सबसे बड़ी मददगार है। तो मैंने उससे कहा भाई मैं तो नहीं इसके साथ शो करूंगा, कि मैं सेट पे जाके लड़ना झगड़ना थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब देखो सब लोग आ गए हैं, ऑडियंस बैठी है, तो करना चाहिए। तो उन्होंने एक आइडिया, तो उन्होंने कहा ऐसा करो शत्रु जी को इसमें जज बना दो, उनकी वजह से आया है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो ये कुछ भूलेगा नहीं। तो शत्रु जी को मैंने कहा हाँ रेडी चलिए। तो वो बैठ गए वहां पर और प्रोग्राम शुरू हुआ। सलमान की एंट्री हुई, सलमान कटघरे के अंदर खड़े हुए। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर कहा कि आप बैठिए। नहीं सर मैं तो अदालत में खड़े ही रहता हूँ, मुझे तो आदत पड़ गई है। तो अब मैं यहाँ कटघरे थोड़ा ऊंचा है, मैं नीचे खड़ा होता हूँ, वो इधर खड़े। मुझे लगा ऐसे कैसे शो होगा। तो मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा जज साहब, तो उन्होंने कहा खामोश मुजरिम अपनी जगह पर बैठे। तो उन्हें ऐसे देखा सलमान ने, फिर वो बैठ गए और फिर प्रोग्राम शुरू हुआ। ही वॉज हॉस्टाइल, नॉट आंसरिंग। लेकिन धीरे 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 उनको पता भी नहीं चला कब वो स्पेल में आ गए और उन्होंने एक एक सवाल का बड़े प्यार से डिटेल में जवाब देना शुरू किया। पहली बार उन्होंने अपने ब्लैक बक केस के बारे में खुल के जवाब दिया और फोकस थे, इधर उधर नहीं देख रहे थे, मेरी तरफ देखते थे, बात करते थे। उनको एक बात शायद लग गई कि मेरी इंटेंशन कोई उनको हर्ट करने की नहीं है, मैं जेन्युइनली एक अच्छा शो करना चाहता हूँ।
उन्होंने अपने जो रोड का एक्सीडेंट था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे उसके बारे में बात की। अच्छा, बात हो ही रही थी तो फिर मैंने उनसे धीरे से ऐश्वर्या राय के बारे में भी पूछ लिया। तो पहली बार उन्होंने ऐश्वर्या के बारे में बात की। जब मुझे लगा कि आप बोल ही रहे हैं तो फिर मैंने कटरीना के बारे में भी पूछ लिया। वो जवाब देने के बाद में मुझे कहते हैं, सर आप मेरी बहुत क्लास ले रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आप कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद बात करें। नहीं सर मैं भी। तो मैंने कहा उनकी आदत है हाफ सेंटेंस बोल के छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। पूछना क्या है सर? अब मुझे लगा ये कुछ फिर गड़बड़ करने के इनके इरादा है। वो कटघरे से उठे, आके मेरे बगल में खड़े हो गए और कहा कि सर ये बटन खोलो। अच्छा बैठो सर। फर्श पे बैठ गए और पुशअप पोजीशन में आ जा रहे थे। पुशअप लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 10 पुशअप हो गए। फिर मुझे इस तरह से दिखते हैं। उनको लगा था कि ये कहाँ, ये 2 4 5 पुशअप में गिरने वाले लोग हैं। 15 तक पहुंच गए कि देन मार गए। And this is how that, and it really became one of the biggest hit because it was Salman Khan, because it was Salman for the first time answering these questions. और उसके बाद तो दोबारा एक क्लिप जो आपने देखा, ये बाद में इसमें आए थे जिन्होंने कहा। और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आने वाले 3-4 दिन में मैं फिर से सलमान के साथ आपकी अदालत का शो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और इस बार ये रिकॉर्डिंग दुबई में होता है। तो और दुबई में वेरी वेरी लार्ज एरेना जहाँ 2-3 हज़ार लोग के बीच में ये शो रिकॉर्ड होगा। तो इट्स अ फुल सर्कल। आज आपने बात की है तो मुझे उनकी एक एक बातें याद आ रही है। और दूसरी बात यह है कि उस शो के बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ, उनको पब्लिक रिस्पॉन्स मिला। सलमान को मैंने आमिर खान के नेतृत्व के रिसेप्शन में देखा, वो मेरी तरफ आ रहे थे। तो मुझे लगा ये, मैंने बहुत उल्टा सीधे सवाल पूछे थे, ये पता नहीं यहाँ पर झगड़ा कर लिया, पब्लिकली किनारे पे। फिर मैं दूसरी तरफ जाके जैकी श्रॉफ वगैरह के साथ खड़ा हो गया, ये फिर उस तरफ आने लगे। तो मुझे लगा मुझे इस पार्टी से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी रेपुटेशन तो ऐसी थी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये आधे रास्ते में ऋतु जी को मिले, मेरे वाइफ को। और फिर वो ऋतु जी मेरे पास आई, कह लगी नहीं वो तो तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आना चाहता है। He came, he hugged me, oh, it's a very warm hug, and he kept saying, sir, कमाल है सर, टाइगर हो सर आप। And it was really such a pleasure. उसके बाद तब से लेकर आज तक हम और सलमान बहुत पर्सनल दोस्त हो गए। मैं मुंबई जाऊं और उनको न मिलूं ऐसा नहीं होता, और वो दिल्ली आए और मैं उनको न मिले ऐसा नहीं होता। और उनके मिलने का मतलब होता है वो रात को 12 बजे आते हैं और सुबह 6 बजे जाते हैं। और अगर मैं उनको मुंबई में मिलता हूँ तो मैं भी उनको मिलने के लिए 12 बजे जाता हूँ और मैं सुबह 6 बजे लौटता हूँ। तो ये एक रिलेशनशिप उनसे बन गई। और मैं वाकई में कहूँगा कि इतने, कई बार क्या होता है आप किसी को करीब से जानते हैं तो उसको लगता है कि उतना अच्छा नहीं है। जब मैं दूर से सलमान को देखता था उतने अच्छे नहीं लगते थे। जितना करीब से जानता हूँ, जितना ज्यादा जानता हूँ, जितना और जानता हूँ, वो आदमी उतना ही बड़ा, उतना अच्छा इंसान, उतना अच्छा ह्यूमन बीइंग, उतना मददगार और उतना बड़ा स्टार वो मुझे दिखाई देता है। धन्यवाद सर, आपने हमें इन स्टार्स के बारे में इतने करीब से जानने का एक मौका प्रदान किया। Sir, as you said that life's come a full circle, and so has आपकी अदालत. So now my question is a twofold one for you, sir. Across the spectrum. आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें कि कौन ऐसा इंसान है जिसको मैं चाहता हूँ आपकी अदालत में आए, जिसको लेकर के लोग मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है, तो अपने मुल्क की बात करें तो सब जानते हैं, सब बता देंगे वो कौन है। राहुल गांधी। ये आप लोग जानते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं। लेकिन मेरी इच्छा है
डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मुझे लगता है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और कोई नहीं हो सकता। जब वो लास्ट टाइम इंडिया आए थे तो राष्ट्रपति भवन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट से ज़्यादा बात नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो मोदी जी ने कहा कि ही इज़ आवर लीडिंग टीवी स्टार। तो ट्रम्प रुक गए मेरे पास में, व्हाट मेक्स यू स्टार? सो आई एम द स्टार। I told him I do a show which is a court-martial kind of show, court drama, where I invite people who sit in the top, and that show has made me the star. He said, very interesting. So then he took a move towards Prime Minister Modi. Have you called him? Have you called him? So I said, yes, he has been there in the top. Okay, interesting. So I said, then I would like you to be sometime in the top. He said, of course, let's discuss this. And then he moved on. So मैंने इनवाइट तो दे दिया है, अब इंतजार है उनके यहाँ आने का, और मैं कोशिश करूँगा जरूर एक न एक दिन वो आए आपके घर। Sir, as we have gathered here to celebrate your career and your contributions to the strengthening and evolutionizing of Indian media, so what is the essential essence that you have taken away from the course of your experience, and that in particular forms the center of your professional outlook towards the world and just the general way you look at things now? See, two things are very important. One, hard work. Whatever profession you are in, whatever you want to do, and hard work is not temporary. That I have done it today, I have achieved it. It doesn't matter. I've been doing Aapke Dada for the last 30 years. Even now, show requires the equal amount of hard work. Second, you have to be fearless. You have to be absolutely not worried about the reaction from the other people. And third, your research has to be really, really, very, very deep. Otherwise, you cannot do a show like this. So, and more than all these three, you have to respect the guests you have on your show. In the last 30 years, I have not insulted anyone. I have not misbehaved with anyone. Nor has anyone done. Even if people have misbehaved, people have shouted, I have continued to smile. Because I feel that when I'm calling you my guest in my show, then I have to give you the respect that I give to my guest. So I think these things are very, very important for anyone who wants to get into to become an interviewer, want to do a show. Thank you, sir. Indeed, Adalat has moved all the people and all our leaders to mend their ways and work for the people, and with the calm demeanor that you have maintained, it has really moved people and holding them accountable. So, sir, as we approach towards the conclusion of this session, we are filled with immense gratitude to have this opportunity. And before you go, sir, what would be the one message for the student community that you would like to leave? जो स्टूडेंट्स हैं हिंदू कॉलेज के, जो यहाँ बैठे हैं, इनको और जो लोग मेरी बात कहीं भी सुन रहे हैं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने जब अपनी ज़िंदगी शुरू की थी तो बहुत अभावों की थी, न खाने के लिए थे, न पीने के लिए पानी था घर में, न हमारे घर में बिजली थी, न टीवी था, न रेडियो था, खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। स्कूल ऐसा था कि जिसमें टाट पट्टी पे बैठते थे। लेकिन किसी ने मेरी मदद की, किसी ने 30 रुपए महीना की स्कॉलरशिप दी, किसी ने यूनिफॉर्म डोनेट की, किसी ने किताबें दी, मैं पढ़ पाया, रेलवे स्टेशन की लाइट में जाकर पढ़ पाया। आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की मिट्टी में ऐसा कुछ है कि सबको मौका देते हैं, सबको मौका। आप लोगों को इतने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला है।
आपकी फैकल्टी को मैं जानता हूं, दे आर रियली डेडिकेटेड। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जब इस कॉलेज से बाहर निकलेंगे, आप लोग बहुत बड़े बनेंगे। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई बड़ा IAS बनेगा, कोई IFS बनेगा, कोई आदमी मिलिट्री में जाएगा। तो एनॉर्मस। जब आप बड़े बन जाएं, जब आप सामर्थ्य आपके पास हो, ताकत हो, पैसा हो, सफलता हो, तो किसी एक गरीब विद्यार्थी का, जिसके पास किताबें नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, जिसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उसकी मदद कर दीजिएगा। मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना सफल होगा। हमारे सवाल तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर दर्शक कीर्गा में बैठे हुए लोगों के ज़रूर काफ़ी सारे सवाल होंगे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सर आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। डेफिनेटली सर। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर? Do we have any questions? आप पूछ लीजिए सवाल, नहीं तो मुझे तो आदत है पूछने की, फिर मैं पूछने लगूंगा। नमस्ते सर, मेरा नाम योगेंद्र करौरिया है। मैं क्लोडिमल कॉलेज में अभी केमिस्ट्री से BSc कर रहा हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया सर, आपका बचपन काफ़ी मुश्किल भरा था। ऐसा ही कुछ हमारा भी है, तो आपको लगता है कि हमें भी कुछ मौका मिलेगा या कुछ लोग मिलेंगे जो हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आपको बताऊं कि मैं जब इस मुश्किल दौर में था तो हमारे तो कोई दोस्त नहीं थे, कोई लेजेंड नहीं थे, कोई हीरो नहीं थे। हमारे पिताजी बाबूजी जो बीमार थे वही एक हिम्मत का सोर्स थे। तो उससे मैं कहता था कभी कभी, जैसे आपने कहा ना, मैं उनसे कहता था देखिए कैसे खुश रहे, गरीबी है, तकलीफ है, खाना नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। तो कहते थे कि गरीबी है, ये तो सच है, लेकिन अगर पैसा होता, अच्छी गाड़ी होती, अच्छा घर होता, अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, खुश रह लेते तो कौन सी बड़ी बात थी। गरीबी में, अभाव में, तकलीफ में खुश रह के दिखाओ, वो चुनौती। तो आप परवाह मत करिए इस बात को अपने जिंदगी में आड़े मत आने दीजिए कि हमारे पास साधन नहीं है, आज हम गरीब परिवार से आते हैं। यही आपकी ताकत है। और इंतजार मत करिए, अपने दम पर लड़िए, कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। हेलो सर, मेरा नाम प्रमोद है। सबसे पहले तो आपके बेहद रोमांचक और प्रेरणा भरने वाले इस सफ़र को हमसे साझा करने के लिए शुक्रिया। और मेरा सवाल ये है कि सर, आप एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा रहे उस वक्त जब प्रेस की फ्रीडम को लेकर के, पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेके ये कहा गया कि उस वक्त में पन्ने काले हुए, और उसके बाद आपने प्रिंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उसके बाद आप टीवी जर्नलिज्म में आए। और आपका तमाम सफ़र जब एक पत्रकार के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय पत्रकारिता का सफ़र भी था। और ऐसे वक्त में जब ये कहा गया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंबा है, थोड़े दिनों के बाद एक मुहावरा ये भी आया कि ये दरकता खंबा है। और आज इस वक्त में है जब जानकार और पत्रकार लोग कहीं ना कहीं ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि दिखता चौथे खंबे जैसा है, काम सरकार की लाठी जैसा करता है। तो पत्रकारिता और सत्ता के संबंध पे आप धन्यवाद। देखिए, दो बातें। पहली बात तो प्रेस की आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, और उस पर जब कुठाराघात होता है वो क्या होता है, ये मैंने महसूस किया है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं उस छात्र आंदोलन का हिस्सा था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, बोलने की आजादी के लिए लड़े थे हम लोग। आमतौर पर ये बातें मैं शेयर नहीं करता हूं, लेकिन
उस दौरान जब सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, एक दूरदर्शन सरकारी था और एक रेडियो सरकारी था जिस पर किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं थी, सड़क पर नारे लगाने की इजाजत नहीं थी। देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके नाम आज सुनते हैं, ये सब जेलों के अंदर बंद थे। मेरी उम्र 16 साल थी। एसआरसीसी का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का। अरुण जेटली को इमरजेंसी लगी, पहले दिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके प्रेसिडेंट थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। जितने स्टूडेंट लीडर थे सबको पकड़ के जेलों में बंद कर दिया। मैंने 16 साल 17 साल की उम्र में उस समय एक अखबार निकाला। साइक्लोस्टाइल अखबार क्या है? साइक्लोस्टाइल शीट थी जिसका नाम हमने रखा मशाल। उसके ऊपर इस तरह की खबरें लिखते थे और वो खबरें उसके साइक्लोस्टाइल बना के 500-600 कॉपी निकाल के मैं और विजय कुमार गोयल, जो बाद में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी बने, लोग के घरों में वो पर्चे बांट के आते थे, क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं पता थी। एक दिन तो आप जिस जगह पर वो साइक्लोस्टाइलिंग करते थे, रात के वक्त मोमबत्ती जला के, वहां पुलिस ने छापा मारा, मैं पकड़ा गया। 3 दिन पुलिस ने टॉर्चर किया, कुर्सी पे बिठा के पांव सामने वाली कुर्सी पे बांध के शिन्स के ऊपर डंडे मारते थे, खून बहता था और पूछते थे ये क्यों करते हो, ये कौन इसके लिए पैसे देता है। जेल में रहा, 10 महीने मैंने जेल में गुजारी। तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, ये आज के जो 2-4 लोग जो सोशल मीडिया पर कॉलम लिखते हैं ना, ये मुझे ना समझाए कि आजादी क्या होती है। जिस आजादी के लिए, जिस अभिव्यक्ति के लिए, जिस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग जेल में रहे, पुलिस की मार खाई, टॉर्चर सहा, आज इतना बड़े बनने के बाद में क्या उसके साथ समझौता करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज डू नॉट गो बाय व्हाट यू रीड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर ऐसा लिखने वाले वो लोग हैं जो फेल्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, टीवी चैनल्स में काम करते थे, वहां से निकाले गए। वो आज किसी भी सफल आदमी के बारे में कुछ भी कहने की औकात रखने भी, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कह सकते हैं? उनको हर सफल आदमी अपना दुश्मन दिखाई देता है। अगर किसी जगह कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, जहां पर पब्लिक राइट हो जाएगा, पब्लिक का गुस्सा आ जाएगा, उसको रोकने की कोशिश होती है, तो किस पर पाबंदी लगती है? इंटरनेट पर, इस सोशल मीडिया पर। उससे खतरा है। कोई नहीं कहता कि ब्रॉडकास्ट और टीवी चैनल्स पर बैन लगा दो, इससे कोई खतरा है। क्यों? हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे नेवी, हमारे जो एयरफोर्स ऑफिसर अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया, उनको मारा, खून उनकी बॉडी थी। वो पिक्चर्स हमें भी अवेलेबल थी, टीवी चैनल्स को भी अवेलेबल थी, ब्रॉडकास्टर्स को भी अवेलेबल थी, हमने तो नहीं दिखाई। लेकिन इन्हीं सोशल मीडिया के दावेदारों ने उन पिक्चर्स को खूब चलाया। क्या वो देश के प्रति, हमारे ऑफिसर के प्रति, हमारे एयरफोर्स के प्रति रेस्पेक्ट थी? वो सिर्फ अपने हिट्स लेने के लिए और हिट्स से पैसे कमाने की कोशिश थी। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, ये अभिनंदन एग्जाम्पल मैंने इसको दिया, ये सब जानते हैं इस बात को। हमने तो रेटिंग के लिए अभिनंदन के खून की बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया। छब्बीस 11 का हमला, लोग कहते हैं आप रेटिंग करते हैं, रेटिंग टीआरपी के लिए करते हैं ताकि आप कमा सकें। मुझे याद है 26/11 3 दिन तक नॉन स्टॉप टीवी चैनल पे कवर किया। कैजुअलिटी क्या थी? हमारे एड, हमारा रेवेन्यू। एक एड नहीं दिखाया किसी ने, तब तो किसी ने नहीं कहा आप बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। खर्चा तो कब हुआ नहीं था और ज्यादा एक्सपेंसिव काम था।
रिपोर्टर्स को वहाँ भेजना, अलग अलग लोकेशन से उनसे लाइव रिपोर्टिंग कराना, दिन रात रिपोर्टर से वहाँ मेहनत से काम किया। तो ये आज 4 पैसे कमाने के लिए फेक न्यूज फैलाने वाले, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वाले खुद जवाब दें। सबसे बड़ा पाप ये लोग करते हैं। इनकी बातों में बताइए, 30 साल से मैंने आपकी अदालत किया है, 20 साल से इंडिया टीवी का मैं एडिटर इन चीफ हूं, किसने कभी कोई उंगली नहीं उठाई। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे टीवी चैनल्स पाक साफ हैं, सारे के सारे ब्रॉडकास्टर्स में सब कोई कमिटेड है, ठीक है, कुछ होते हैं, लेकिन आप सबको एक तरह से हाथ देंगे ये ठीक नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, बाय एंड लार्ज इनमें जो काम करते हैं ये हमारी और आपकी तरह के लोग हैं। ये भी अपने देश को उतना ही प्यार करते हैं, ये भी अपने लोकतंत्र को उतना ही प्यार करते हैं, इन्हें भी अपनी आज़ादी उतनी प्यारी है जितनी आपको और मुझे प्यारी है। इसलिए ऐसी बातों पर भरोसा मत करिए। ऐसे लोगों को हम नॉर्मली जवाब भी नहीं देते। ये तो आज आपने ऐसी बात कह के मुझे थोड़ा सा प्रोवोक कर दिया, और पिछले 3-4 दिन में मुझे कुछ और भी ऐसी बातें सुनने को मिली थी, इसलिए मैंने इसी बात का जवाब दिया। नॉर्मली मैंने आई वांट टू ट्रीट देम विद द कंटेम्प्ट दे डिजर्व। वो नहीं डिजर्व करते इन चीजों का जवाब। क्यों? इस देश की जनता, इस देश की पब्लिक जो हमें देखती है, जो अपना टाइम हम पर स्पेंड करती है, मैं उस जनता को सलाम करता हूं, उनकी ताकत पर हम जिंदा हैं। कोई कितना भी कह ले, कितना भी सोशल मीडिया पर गालियां दे दे, लेकिन हमारा व्यूअर तो हमारे साथ नहीं गया। क्यों इंडिया टीवी देश का नंबर 1 चैनल है? क्यों 30 साल से आपकी अदालत देश का नंबर 1 शो है? इसलिए कि जनता हम पर भरोसा करती है और हम जनता पर भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि मैं अपनी जो हमारी एडिटोरियल टीम है उसको हमेशा एक ही बात कहता हूं, जो आदमी, जो दर्शक हमें देख रहा है वो हमें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दे रहा है। वो अपना टाइम हमें दे रहा है, वो टाइम जो कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। और जो आदमी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमें दे रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हमारी ताकत है, हम उस व्यूअर के साथ, उस दर्शक के साथ कभी भी बेईमानी ना करें। हम उसके एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक टाइम की वैल्यू उसको दें, उसके प्रति उत्तरदायी हो। हमें किसी सरकार के प्रति, हमें किसी पॉलिटिशियन के प्रति, हमें किसी संगठन के प्रति उत्तरदायी होने की जरूरत ही नहीं है। हम उत्तरदायी हैं देश की जनता के प्रति, देश के लोगों के प्रति, क्योंकि मैं आपके सामने उदाहरण खड़ा हूं, मुझे इस देश की जनता ने बनाया है, मैं उनके प्रति उत्तरदायी। और भी कोई सवाल है? थोड़ा So thank you very much. Thank you. With this, we come to the end of this session. Thank you so much, sir. It was indeed an honor for all of us, the entire Hindu College, to have you with us today. Now I would like to call upon the stage Professor Manisha Pandey ma'am to felicitate Shri Ravi Sharma. Guys, I request you to please be seated. The gate will remain closed now. The gates will only open after 5 minutes. Please.
Guys, please be seated. I request all the volunteers to not allow anyone to go out of this hall.